वक्त की रफ्तार। ठीक है विलास, अब हम तुम्हारे और तुम्हारी मौत के बीच में दीवार नहीं बनेंगे। हमने तुमसे वादा किया था कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तो फिर तुम्हारी मौत में भी हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये रहा। Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, yeah. no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, I'm always yeah. flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me. But they hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen, oh the irony. To hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't never say never. And turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. कुदरत भी यही चाहती है विलास। कुदरत चाहती है कि तुम जिंदा रहो और अपने दुश्मनों से बदला लो, और कुदरत के फैसले को तुम ठुकरा नहीं सकते। क्या ख्याल है विलास? बस आज से मरने की कोशिश है खत्म। अब मैं जिंदा रहूंगा। अब मरने की बारी उनकी है जो मेरे जीते जी मेरे मरने की वजह बने।
मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। गुड। बस यही जोश और यही हौसला मैं तुमसे चाहती हूँ विलास। ये लो। ये रिवॉल्वर तुम्हारे लिए नहीं है विलास। जानता हूं मैं, ये मेरे लिए नहीं है, मेरे दुश्मनों के लिए है। पिस्तौल तो तुमने ले लिया विलास, लेकिन एक बात याद रखना, पिस्तौल की गोली एक इंसान को एक पल में मौत में उतार देती है, लेकिन हमें अपने दुश्मनों को हर पल बार बार मारना चाहिए, और यह रिवॉल्वर के बस की बात नहीं है। तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहिए, क्योंकि रिवॉल्वर से निकली हुई गोली तो सिर्फ इंसान को मारती है, लेकिन दिमाग से निकली हुई गोली वो तो दुश्मन के वजूद को ही मिटा देती है। तुम जितनी तबाही चाहो मचा सकते हो विलास, क्योंकि तुम्हारे पास एक तेज दिमाग है। तुम्हें इस खिलौने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखो कि आज और इसी वक्त से तुम्हारा इंतकाम शुरू हुआ। राघव, भाई मधुकर। जी सर। ये भाव साहब कहाँ हैं? हुजूर वो ZP के प्रचार दौरे पर गए। ये भाव साहब भी अजीब वक्त पर चला गया। जहां भी हो उसे फौरन बुलाओ। जी सर। लेकिन सर बात क्या है, आज आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। मधुकर, जब हम परेशान लगते हैं तो परेशान होते नहीं, और जब परेशान होते हैं तो लगते नहीं। तुम हमारी परेशानी की फिक्र मत करो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं तो हुजूर आपका राइट हैंड हूं, और आपकी परेशानी से अगर मुझे परेशानी नहीं होगी तो और किसे होगी हुजूर? मधुकर, जानते हो इस कागज के टुकड़े पर क्या लिखा है? इसे कैसे पता लगेगा हुजूर? ये उस कमिश्नर का लेटर है जो राजेश्वर नाम की गिरी हुई बिल्डिंग की इंक्वायरी कर रहा है। भाऊ साहब ने जो बीज बोए थे अब उसके गुल खिल रहे हैं। उस साले को तलाश करो और उससे कहो कि वो गिरी हुई बिल्डिंग अब हमें गिराने पर तुली हुई है। इस जमीन के लेन देन के चक्कर में तुम्हें, मुझे और भाऊ साहब को आरोपी बताया गया है। भाऊ साहब और उस वकील से कहो कि आज शाम को हम उससे मिलना चाहते हैं। जी सर। मधुकर जी। ये तुम्हारी जबान जो कैंची की तरह चलती है, इस पर काबू रखो। मैं समझता हूँ हुजूर, मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। इस लेटर भेजने वाले कमिश्नर की रातों की नींदें हराम करनी है मुझे। विलास रात भर सोया नहीं, पूरी रात वो जागता रहा। सारी रात मॉनिटर स्क्रीन पे मैं उसकी एक एक हरकत, एक एक मूवमेंट ऑब्जर्व करता रहा, नोट करता रहा। एक जख्मी शेर की तरह वो इधर से उधर, उधर से इधर घूमता रहा। लगता है आपकी बातों का उस पर असर हो गया है। राघव, हम
हम बातें हवा में उड़ाने के लिए नहीं करते, हम बातें इसलिए करते हैं कि हर बात का असर हो, हर शब्द एक तीर की तरह चुभ जाए और इस तरह छा जाए कि कोई भी उसे मिटा न सके। हमारी बात का असर तो विलास के दिल पर होना ही था और इसके लिए हमने महीनों परिश्रम किया है। रात भर वो सोचता रहा, फिर उसने कुछ लिखने की कोशिश की, फिर धीरे धीरे वॉयलेंट होने लगा, फिर उसने खुद ही अपने आप को इंजेक्शन लगा दिया, फिर धीरे धीरे शांत होने लगा, फिर उसने अपने आप मोमबत्ती लगा दी और फिर गुमसुम सा होकर एक कोने में बैठ गया। राघव, ये विलास के सामने जो हम मोमबत्ती रखते आए हैं उसकी लौ नहीं, बल्कि उसके दिल में जलाने वाली आग के लिए एक हथियार था। और अब देखो, विलास खुद अपने दिल में लगी हुई आग में जलता चला जा रहा है और बिल्कुल उसी मोम की तरह पिघल रहा है। लेकिन यह पिघली हुई मोम बेकार न जाए, ये देखना हमारा काम है। लेकिन इस वक्त हमें मोम की नहीं बल्कि बारूद की जरूरत है, जो हर चीज तहस नहस कर दे। मैं देश रत्न खानदान के विलास नाम के बारूद से विजय राज की धज्जियां उड़ा देना चाहती हूं। देश रत्न खानदान के ही विलास की जिंदगी में आग लगा के विजय राज को राख कर देना चाहती हूं। ये मैं करके रहूंगी। विलास इस वक्त कहां है? हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। तुमने मेरा फोन क्यों काटा? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जिसे तुम फोन कर रहे हो वो आदमी नहीं, उसे तो पता भी नहीं चलना चाहिए कि तुम उसके दुश्मन हो और तुम जिंदा भी हो। मैं डीएम को खत्म किए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। तुम्हारा चैन से बैठना हम भी नहीं दे सकते, लेकिन विलास, अपने दुश्मन पर इस तरह वार करो कि वो घाव को सहन करने के लिए जिंदा रहे। तुम्हें डीएम को मारना नहीं है, बल्कि उसे जिंदा रखना है। और विलास, तुम्हारे कई ऐसे दुश्मन हैं जिन्हें तुम दुश्मन मानते ही नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे अपने तुम्हारे दुश्मन हैं। तुम्हारा पहला वार होना चाहिए विजय राज देश। ये तुम क्या बक रही हो? सच
सच कह रही हूं मैं। चाचा जी मेरे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? क्या बिगाड़ा है उन्होंने मेरा? तो फिर किसने बिगाड़ा है? हाँ? डीएम, मधुकर, रजनीगंधा या रहेजा? ये सब तो बहाने हैं। बंद करो ये बकवास। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है विलास, और बकवास कह देने से हालात बदल तो नहीं जाते। अगर वो तुम्हारे दुश्मन नहीं थे तो फिर आज तुम्हारी ये हालत क्यों है? क्यों है ये हालत? जब तुम गलत रास्ते पर निकल पड़े तो उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं रोका? उन्होंने कोशिश तो की थी। कोशिश की थी। क्या यह मुमकिन है कि विजय राज जैसा इंसान कोशिश करे और नाकामयाब हो जाए? कोशिश तो बस एक बहाना था। अगर वो चाहते तो तुम जिंदगी भर कभी भी जूहा नहीं खेलते। तुम लगते कौन हो उनके? वो अपने दोनों बेटों का भविष्य तुम्हारे साथ क्यों बांटे? इतनी बड़ी जायदाद 3 हिस्सों में क्यों बंटे? याद रखो, उनके लिए तो विकी और योगेश ही सब कुछ है। मैं ये नहीं मानता। अब भी नहीं मानते तुम ये? अगर वो चाहते तो साल भर में एक जिंदा इंसान को क्या ढूंढ नहीं सकते थे? क्या क्या नहीं छीन लिया उन्होंने तुमसे, यहां तक कि तुम्हारी अपनी बीवी भी तुमसे छीन ली। छीन कर अपने बेटे को दे दी ताकि वो भी अपना हिस्सा न मांग सके। हाँ, यही सच है। षड्यंत्र रचते चले गए तुम्हारे चाचा।